Let's say whenever a lady gets pregnant, the first question her husband would ask to their cousins is कि यार सबसे अच्छी हॉस्पिटल कौन सी है. Let's say whenever parents get ill, what we do is we ask कि यार सारो डॉक्टर कयो છે. So everything in life from your birth till death is basically references. इस संबंध में धंधो नहीं करना चाहिए. तो अगर म्यूचुअल कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मतलब आगे जाके रिलेशनशिप में बिगड़ेगी. Okay, a very direct question to all of you. तो बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है? ऑनेस्टली बताओ, गरज है कि नहीं है? कि एक बार फॉलो अप लेते हैं ना, फिर उसके बाद माइंड में एक ट्रिगर हो जाता है कि भाई अभी उसको लेना होगा तो लेगा. ठीक है, मैंने बेस कोड कर दिया है. Okay, let me sing a song. Can you guess what is it? नो, Not really. I'm sure no one can. So there is always your story, my story and true story. क्योंकि जब भी रिलेशनशिप का नाम आता है सामने एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है. Now this is very close to my heart and I bet if any entrepreneur in the world finds it, his company will be multi-million dollar company. आज हम बात करेंगे लीड जनरेशन की ऐसी टेक्निक की जो शायद 5000 साल पुरानी है. इतने साल बाद अलग अलग देश की सरहदें भी शायद बदल जाती होगी. बट इफ यू कैन मास्टर दिस टेक्निक फ्रॉम आवर ओन हिस्ट्री, you don't need to do anything else. Yes, I'm talking about business through relationship. Namaskar, this is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. Today we have special guest, Mr. Hemal Raj. The best thing about him is just by his presence, he makes people comfortable and smile. People love him a lot. He is known as SRK of training industry and his energy is like Ranveer Singh. Hemal Raj is entrepreneur, business scale-up and transformational coach. His purpose of life is to grow entrepreneurs exponentially, personally and professionally. He has trained more than 5,000 entrepreneurs in Ahmedabad. He is most respected and likable coach in Ahmedabad. So let's know more about business through relationship with Hemal Raj. हेलो हेमल, कैसे हो? Hi, good morning. I'm doing phenomenal. ओके, तो हेमल आप पहले तो ये बताओ कि आपकी जर्नी क्या है, एज एंटरप्रेन्योर जर्नी क्या है? पहले आप जॉब करते थे और इस फील्ड में कैसे आए? So when I started my journey, I basically belonged to a very small village and I always had that passion कि यार मेरे को entrepreneur बनना है. So there was a one fine day wherein I decided कि okay, enough of it, now let's be an entrepreneur and that's how I started off. ओके, सो बिजनेस थ्रू रिलेशनशिप, वैसे तो ये टेक्निक हमारे अगर बात की जाए तो मोहेंजोदड़ो के टाइप से है. मतलब 5000 साल पुरानी ये टेक्निक है. बट कहीं ना कहीं इसके बाद बहुत सारी इवोल्यूशंस आए, अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई. बट कुछ ऐसी बातें जो छोटी छोटी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हम नहीं कर पाते, जिसके कारण इसमें हम सक्सेसफुल नहीं है. तो थोड़ा इन डेप्थ बताइए कि बिजनेस में रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है और उसके ऊपर ऐसा क्या काम किया जाए जिससे हम अच्छे से अच्छी बड़ी बड़ी लीड जनरेट कर सकते हैं. Okay. So let me ask you and the audience this question that मान लीजिए अगर आपके बेटे या बेटी की शादी करनी है, so सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कजिन से पूछा जाए कि डू यू हैव अ गुड ब्राइड और अ ग्रूम, हु डू यू नो वन. Second, let's say whenever a lady gets pregnant, the first question her husband would ask to their cousins is कि यार सबसे अच्छी हॉस्पिटल कौन सी है. Let's say whenever parents get ill, what we do is we ask कि यार सारो डॉक्टर कयो છે. So everything in life from your birth till death is basically references because people work with emotions. People are not robots. And therefore, relationships are very important because business will come through relationships. That's what the final ultimate $1 million formula is. ओके, सो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया. लाइक मैंने अभी माइक्रोस्पेक्ट किया तो पता चला कि मेरी लाइफ में भी हर जगह पे रेफरेंस से ही काम होता गया है. ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट किसी कंपनी में जाके मैंने कुछ प्रोडक्ट बाय कर लिया. सो इट्स ग्रेट एग्जाम्पल. बट मुझे ये समझाओ कि कोई नया बिजनेस पर्सन है या इस स्किल को मास्टर करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? एग्जैक्टली. सो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे और ऑडियंस से कि यार अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके पास मान लीजिए कुछ पैसे पड़े हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे बताइए. कोई अच्छे
नजदीक का कोई ब्रोकर होगा, उनसे पहले जाके पूछेंगे कि भाई सो आप बोलेंगे कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, Yes. या फिर गोल्ड में कर लो, या फिर कोई प्रॉपर्टी में ही कर लो. बट मोस्ट ऑफ अस इन लाइफ फॉरगेट दैट द बेस्ट ROI इज इन्वेस्टिंग ऑन सेल्फ. हम लोग अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते. एंड द रिसर्चर्स से UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, that 69% of the entrepreneurs do not invest in themselves. So हमने सबने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी हुई है कि यार जब भी एक पेड़ को काटना हो तो सबसे पहले अपना एक्स को शार्पन करो, पर हम लोग वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते, भूल जाते हैं. इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दैट इज हैविंग न्यू स्किल्स, इवॉल्विंग. एंड देन वन स्किल इज पीपल मैनेजमेंट. तो पीपल मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में सीखी जाती है. हाउ? सो यू रीड लॉट ऑफ बुक्स, यू टॉक विद पीपल, you do a course like NLP, neuro linguistic programming. Okay. And there are a lot of courses which can help you that how can you be a great manager, great leader, and a great people's person. Okay. And that's how you grow in people's life. Okay, great. अभी मुझे ये बात करनी है कि रिलेशनशिप की अगर बात चल रही है तो कहीं ना कहीं मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है कि संबंध में धंधो नहीं करना चाहिए. लाइक हमारा पास्ट ऐसा है कि अगर भाई से या अंकल से कोई बिजनेस करता है तो अगर म्यूचुअल कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मतलब आगे जाके रिलेशनशिप में बिगड़ेगी. तो अभी आप तो यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हो कि पहले उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, फिर उसके साथ बिजनेस करो, या फिर उनसे आप रेफरेंस लो. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ हुआ तो हमारी रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट आएगी, दैट मोमेंट फ्रेंडशिप भी बिगड़ेगी. तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? ठीक है, अगर आप एक शॉप खोलते हो तो आप सबसे पहले किन को इनवाइट करते हो? रिलेटिव्स. तो आप जब इनवाइट रिलेटिव्स को कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आपको उनके साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Right. अगर नहीं करना चाहिए तो उनको बुला ही क्यों रहे हो? सो दिस इज एन ओल्ड बिलीफ सिस्टम. लाइफ में ऐसा होता है, व्हेन यू स्टडी साइकोलॉजी इन डेप्थ, काफ़ी सारे बिलीफ सिस्टम है जो हमने ली हुई है. लेट मी कोट एन एग्जाम्पल. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आज कि यार हम लोग, और मान लीजिए एंटरप्रेन्योर ऐसा मानते हैं कि यार अगर हमने फॉलोअप किया तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि गरज है. यस. ओके, अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. तो बिजनेस क्यों स्टार्ट किया यार? ऑनेस्टली बताओ, गरज है कि नहीं है? है. तो जब है तो फॉलोअप क्यों नहीं करना? दिस इज अ बिलीफ सिस्टम यू हैव एडॉप्टेड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और फ्रॉम द वर्ल्ड विच इज नॉट योर्स. सामने वाले को फॉलोअप करना ही चाहिए, गरज है उसको भी पता चलना चाहिए. उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, आपको पता चला गरज है तो आप मेरा प्रोडक्ट या सर्विस फ्री में मांगेंगे, और आप मांगेंगे भी तो मैं दे देने वाला. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैराडाइम शिफ्ट एंड अनदर डायमेंशन टू इट. क्या मैं अगर फॉलोअप में अच्छा हूँ तो कैन समवन ऑल्सो थिंक कि बॉस अगर ये और इनकी टीम फॉलोअप में इतनी अच्छी है तो काम में तो कितनी अच्छी होगी? सो द पैराडाइम शिफ्ट हैज टू हैपन विच इज नॉट हैपनिंग. And therefore we believe the old belief systems. Right. अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे भरोसा नहीं है, तभी ये क्वेश्चन आएगा कि यार रिलेशनशिप में के फैमिली में बिजनेस करिए तो रिलेशनशिप बगड़ से. वाई नॉट अ डिफरेंट एंगल कि रिलेशनशिप અને બિઝનેસ ફેમિલીમાં કરીએ તો એપ્રિસિએશન મળશે અને લોકો વધારે ખુશ થશે. Why don't we miss on that? That's only and only because of fear we have. Right. But there is one another thing that I am also facing the same problem. कि यू आर टॉकिंग अबाउट फॉलोअप्स, राइट? बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है, एज अ बिजनेस ओनर समझ लो या फिर मेरा खुद का ईगो समझ लो, कि एक बार फॉलोअप लेते हैं ना, फिर उसके बाद माइंड में एक ट्रिगर हो जाता है कि भाई अभी उसको लेना होगा तो लेगा. ठीक है, मैंने बेस कोड कर दिया है, बट अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. या तो फिर ऐसा हो जाता है कि यार हम लोग इतना अच्छा सर्व ऑलरेडी करने वाले हैं, फिर उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मतलब ये बेस दे रहा है तो वो टाइम लेगा. या फिर 4 लोगों के साथ, लाइक गुजराती होने का एक ही रूल है कि आप भाव कराओ, बराबर है? तो ऐसे सिस्टम हो जाती है फिर, तो उस मोमेंट पे हम फॉलोअप नहीं लेते हैं. तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हो कि ये वाली साइकोलॉजी में से कैसे बाहर निकले एज ए बिजनेस ओनर? दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन और मेरे पास इसके लिए 3 पॉइंट्स है, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. ओके, लेट मी सिंग अ सॉन्ग. Can you guess what is it? No. Not really. I'm sure no one can.
तो जब सामने वाला आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, आप समझा ही नहीं पाए हो, राइट? आप बेस्ट हो वो आपको पता है, आपने समझाया मेरे को कि आप बेस्ट हो, अगर नहीं तो इम्प्रूव योर सेल्फ, डू नॉट ब्लेम कि सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है, दैट्स फर्स्ट. सेकेंड, you have to keep your identity and your company's identity very different. So अगर आज राज जो है वो एक इंडिविजुअल है और राज अगर डायरेक्टर या ओनर है तो वो कंपनी का डायरेक्टर और ओनर है. सो देन फोकस ऑन व्हाट इज राइट, नॉट ऑन हु इज राइट. अगर हु इज राइट में आप बोलते हो कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ईगो, बट एज अ डायरेक्टर क्या वो कंपनी को ग्रोथ में हेल्प करेगा? इफ नॉट, हैव अ थिक लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन राज एंड द राज हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. फोकस ऑन व्हाट इज राइट. एंड बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, कोई बुक्स में ये नहीं लिखा, बट जब आगे बढ़ना हो और जब आप सही हो तो ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इमेच्योरिटी वाली बात है. कभी कभी ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે કે અપમાન ગળી જવું પડે આગળ વધવું હોય તો, ધેટ ઇઝ સ્માર્ટનેસ. ઈગો લાકે ધંધા ના કરના ઇઝ નોટ અ સ્માર્ટનેસ. તો ક્યારેક અપમાન થાય તો ગળી જવાનું, કામ કરવાનું, અને કામ તમને એટલું બધું જશ આપશે કે તમારી એનું જે અપમાન હતું એ તમને ગૌણ લાગશે. So this is how you would have to train yourself. What a great explanation. मेरे बहुत सारे डाउट्स है जो ऑलरेडी क्लियर हो गए अभी जस्ट इन 2 minutes. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट एक बात ये भी है कि अगर आपने जैसे बोला वैसे फॉलो स्ट्रक्चर से अगर बिजनेस हो भी गया, चलो समझ लो, और अच्छे से हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं है कि हमारी सर्विसेज में मतलब 100% कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह जाएगी. करेक्ट. तो उसके कारण अगर वो कस्टमर है हमारा और वो हमारी रिलेशनशिप भी दोनों की स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो रिश्ता भी बिगड़ता है और बिजनेस भी बंद हो जाता है. तो एट दैट मोमेंट आप क्या सजेस्ट करोगे कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर रिलेशनशिप में अगर एक बंदे के साथ कुछ खराब हुआ तो 100 लोगों को जाके बोलेगा एग्जैक्टली कि भाई इससे बिजनेस मत करना. तो उस मोमेंट पे मुझे ऐसा हो जाता है कभी ना कभी कि भाई जो भी नुकसान हो रहा है वो ले लेता है, बट नाम खराब नहीं करना है. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये नेचर मैंने अडॉप्ट कर लिया तो ऐसे 100 लोग भी आएंगे ना, तो मैं मेरी SOP पे खड़ा नहीं रहूँगा, शायद उसको वो चीज़ डोनेट कर. तो अगर ऐसा ना हो, कंपनी के SOP अगर कुछ है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली खड़ा भी रहना है, रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स भी अगर सॉल्व करना है, तो उस मोमेंट पे आपका एक्सपीरियंस क्या है कि कैसे सॉल्व किया जाए? सो फ्रॉम माई ऑल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई विल गिव यू $1 million फॉर्मूला. लाइफ में हमेशा 2 वर्ड्स याद रखना. एक वर्ड है रीजनेबलनेस और दूसरा वर्ड है, बिकॉज वी आर गुजराती, प्रेम थी. नाउ व्हेनेवर यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, डू नॉट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट. आप सिर्फ 2 ही वर्ड यूज करिए कि यार इस सिचुएशन में रीजनेबली क्या होना चाहिए और प्यार से आपको क्या करना है. इफ यू आर अ कस्टमर, ठीक है, पीपल से दैट द बिगेस्ट लॉस एवर दे फेस इज द लॉस ऑफ मनी, विच इज नॉट. इट इज द स्मॉलेस्ट लॉस. पैसा एक बार गवा के अगर नाम बचा लिया तो कल पैसा कमा लोगे, अगर नाम खराब हुआ तो पैसा नहीं कमाओगे. सो मान लीजिए कि अगर आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और कस्टमर है, सो देयर इज ऑलवेज योर स्टोरी, माई स्टोरी एंड ट्रू स्टोरी. सो सिट विद मी, हैव अ कप ऑफ कॉफी, लेट्स अंडरस्टैंड कि योर स्टोरी क्या है, मेरी स्टोरी क्या है, ट्रू स्टोरी क्या है. नाउ वंस वी नो द ट्रू स्टोरी, वी सिम्पली आस्क रीजनेबली આમાં શું થવું જોઈએ. अच्छा, વધારેમાં વધારે શું થશે? यू वुड से कि यार मैं पैसा वापस लेना चाहता हूँ या पैसा नहीं देना चाहता. चल डन, वट एवर यू फील, लेट्स डू दैट. यहाँ पे चैप्टर क्लोज करते हैं. फिर भी मैं तुम्हें सर्विस दूंगा, मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, एंड आई विल मेक श्योर व्हाट आई हैव कमिटेड आई डिलीवर दैट. नाउ वंस यू डू दैट, द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू एंड ऑफ कोर्स द मनी विल आल्सो कम इन. पर अगर यहाँ पे हमने ये बोला कि यार तुम्हारी ही गलती है, दैट्स द प्रॉब्लम. Right. So let's be very reasonable, logical, and practical and do what is doable. So let me quote this. My mentor taught me that in life there can be always 3 kinds of situations. One is a win, a lose. Deal नहीं होगा. Lose, win, deal नहीं होगा. Lose तो possible ही नहीं है. So it has to be always a win-win. So both the parties have to win. And then things get sorted. Okay. अभी मुझे दूसरा ये जानना था कि कभी बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप का गलत फ़ायदा उठाया जाता है. लाइक कोई हमारे नज़दीकी है तो उनको पता है
कि हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विस कितने में आती है, उस पर मार्जिन कितना रहता है, उनको सब पता रहता है। और उनको पता है कि अगर हम बाहर मार्केट में से लेंगे, उससे अच्छा घर से लेंगे, मैं उसको फोर्स करूँगा तो यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा मिल सकता है। और वहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी ऐसी सिचुएशन में। तो इस मोमेंट पे अगर अभी एज अ कंपनी ओनर या अगर हमारे स्टाफ को किसी को ट्रेन करना है कि कैसे ऑर्डर्स लेने हैं और नहीं लेने, अगर ऑर्डर मैं उसका नहीं लूँगा तो भी उसको बुरा लगेगा, तो ऐसे कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसके साथ क्या करना है, थोड़ा उसके बारे में भी समझाओ। क्योंकि जब भी रिलेशनशिप का नाम आता है सामने, एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है और फिर हमारे जो डिसीजन है वो नहीं ला पाते कहीं ना कहीं। उसके लिए नो डाउट बहुत ऑनगोइंग प्रैक्टिस चाहिए, बट अगर वो प्रैक्टिस मुझे आज से शुरू करनी है तो उसमें इजी सॉल्यूशन क्या दोगे आप मुझे? Okay. So you have to categorize your customers in A, B and C. ओके और तीनों के लिए पॉलिसी अलग होगी। ओके मल्टीनेशनल्स की बात अलग है, जहाँ पे एक ही पॉलिसी होती है, एक ही एसओपी होती है। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, ए, बी एंड सी। सो कस्टमर जो बहुत ही नज़दीक है, उनके लिए आप क्लियर कट ये रखो कि हो सकता है कि मैं शायद इसमें ब्रेक इवन पे भी ऑपरेट कर लूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नंबर 1 रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स दूसरी बात, अगर आपने आज अनकंडीशनली उनके साथ खड़े रहे हैं, सो देयर कैन बी लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो आपको कल जाके मिलने ही वाले हैं। राइट, थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिलोसॉफी लेके आता हूँ। ગુજરાતીમાં અગર હું એવું પૂછું કે આપણે એક કેરી વાવીએ તો 10 વર્ષ રહીને આપણને શું મળશે? બોલો, 10 વર્ષ પછી આંબાનું ઝાડ यस કે એક કેરી? આંબાનું ઝાડ, રાઈટ? So this is the law of universe कि people who understand vibrations they will link it कि अगर आप कुछ यहाँ पे डालते हो यूनिवर्स में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे वो वापस दो। मैंने आपका अच्छा किया, मैंने वाइब्रेशन डाल दिया, अब वो घूम फिर के कहीं ना कहीं मेरे पास किसी भी माध्यम से आने ही वाला है। सो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा लॉस हो गया कि क्या कुछ छेतराई गयो। नो, यू डिड योर डीड, स्टोरी एंड्स, इट विल कम बैक टू यू बिकॉज यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड इट इज गुड और बैड। यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स तूने ये किया, तेरे को ये वापस मिलना चाहिए, एंड दैट्स इन मल्टीपल्स। So if you do something which is genuine, unconditional, with a good intention, that is going to help you out. राइट Yeah. So categorize your customers. There are some people जिसको तुमको break even पे operate करना है. There are some people जहाँ पे तुमको profits कम रखना है. And there are some people जहाँ पे तुम company SOPs follow करोगे. ओके ग्रेट। फिर मेरा दूसरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर एमएसएमई कंपनीज की बात की जाए तो, और उस पर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो जितने भी डायरेक्टर्स या ओनर्स रहते हैं, मतलब वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं या तो फिर सेकंड जनरेशन में है, तो उनकी जो मास्टरी रहती है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहती है या तो फिर वो अच्छे से ऑपरेशन मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस किया है वीकनेस है सेल्स मैनेज करना। ठीक है, और आप जैसे अभी बता रहे हो कि सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं अगर वो रिलेशनशिप को मैनेज करने जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपना R&D छोड़ के आएगा, या तो फिर अपना ऑपरेशन जो है वो छोड़ के आएगा। और ज़्यादातर देखा गया ये है कि जितने भी कंपनी ओनर्स है वो इंट्रोवर्ट रहता है, क्योंकि दे आर ग्रेट रिसर्चर्स, राइट? दैट्स वाई दे आर मैनेजिंग गुड ऑपरेशंस। तो इंट्रोवर्ट के लिए आपका क्या सजेशन है कि उनका सेल्स बढ़ाने के लिए? क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जानता है, ऑपरेशंस जानता है, तो कस्टमर को वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगा। अगर उसको ये स्किल एनहांस करनी है तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? This is the most amazing question and very close to my heart. So here I'll give you 3 points to it. सबसे पहले, अगर तुम सेल्स में वीक हो एज एन एंटरप्रेन्योर, so my answer is a big no. सेल्स मत करो. Surprised? Let me tell you how. But before that, let me also tell you that it comes with a great delegation technique. Did you know or do you know that I am also an introvert? And I was and I am. अब लोग बोलेंगे कि यार तू 5,000 लोगों को एक साथ में ट्रेन करता है, तेरा इतने लोगों के आसपास होता है. But I have developed myself to be outspoken. So I am an introvert with a quality outspokenness. Okay. So it is not necessary कि अगर आप introvert हो तो आपको extrovert होना है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं बुक्स के अंदर जो गलत सिखाई जाती है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. किसी बच्चे ने बहुत प्यार से इनोसेंटली ऐसा पूछ लिया कि सन राइजेस फ्रॉम वेयर.
So generally people say sun rises from east. तो बच्चे ने बोला कि यार ये तो गलत है. तो टीचर ने पूछा क्यों? तो बोले मैडम सन कहाँ राइज होता है, अर्थ घूमती है. नहीं. तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग ये सब पढ़ के सुन के ऐसा एडॉप्ट कर लेते हैं कि दुनिया में एक दो ही ऑप्शन है, इंट्रोवर्ट बनो या एक्सट्रोवर्ट बनो. नो, बी एन इंट्रोवर्ट, बी एन आउटस्पोकन. सेकेंड, now this is very close to my heart and I bet if any entrepreneur in the world finds it, his company will be multi-million dollar company. Okay. There is a term called distinct forte which is known as DF. So आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होगी अगर आप अपने बारे में एनालाइज करते हो, मेडिटेट करते हो और बी विथ योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो. बट अबव योर स्ट्रेंथ देयर कम्स समथिंग विच इज नोन एज अ डिस्टिंक्ट फोर्टे. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से that when I know my forte, I would only and only do that one thing for my company and that will generate revenue for it. Okay. बाकी के जितने भी काम मैं कर रहा हूँ वो सब डेलीगेट होने ही चाहिए क्योंकि वो काम मुझे बिजी रख रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं रख रहे. अब इसको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. लेट्स से इफ आई एम वेरी गुड एट PR एंड सेल्स, मैं सिर्फ PR और सेल्स करूंगा. उसके अलावा अगर ऑपरेशंस है या कोटेशन भी बनाना है या छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज मैं नहीं करूंगा, आई गेट पीपल टू डू इट. उसका डिस्टिंक्ट फोटे वो होगा एंड देन माई कंपनी वुड ग्रो. बट मान लीजिए आपने बोला अगर मैं रिसर्च में बहुत अच्छा हूँ और मैं सेल्स करने गया, सो आई एम अ फिट आउट एंड आई एम ट्राई टू बी अ फिट इट. So it is like you tell Ronaldo, boss, you are talented. Why don't you play cricket? Drastic failure. Sachin playing football, drastic failure. So उनका distinct forte उन्होंने find किया था कि यार मैं सबसे best और सबसे excel किस में कर सकता हूँ. Right. So sports is their strength. Entrepreneurs क्या करते हैं? Strength तक आके रुक जाते हैं. So sportsman होना is a strength, but then sports में किस में है सबसे best होना? That's a distinct forte. So guys, find your distinct forte and you would grow in life. बाकी सब कुछ delegate कर दो. Okay. Great example you have done. And so much knowledge that you have shared. It's very amazing. But there is one thing that is very close to my heart. And जब से मैं छोटा हूँ तब से एक ही बात समझाया जाता है मुझे कि कभी ना जब भी फाइनेंस की बातें आती है तो फाइनेंस किसी को शेयर नहीं करना चाहिए. राइट. और जितने भी MSME ओनर्स अभी देख रहे हैं उनका सभी का एक ही प्रॉब्लम है कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर 1 CR के अराउंड है, वो क्या करेंगे कि एक दो बंदे तो रख देंगे प्रोडक्शन एंड डिस्पैच के लिए, बट कभी अकाउंटेंट हायर नहीं करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू है. और छोटी इंडस्ट्री है तो इसमें कभी ऐसा भी होता है कि डेटा लीक होने की संभावना होती है. और ऐसा भी देखा गया है कि सेम बिजनेस वो बाजू में ही जाके स्टार्ट कर देगा. तो कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है, जो आपने बोला, जो अपना DF के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, उनका रीजन शायद कहीं ना कहीं ये है कि बाय नेचर वो ऐसे ही ग्रो हुए हैं कि सब कुछ खुद से ही करना है. तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? और कभी ऐसा नहीं है कि उनको अगर उसमें से बाहर भी निकलना है ना तो मनी कंस्ट्रेंट आ जाता है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि बिजनेस खुद से स्टार्ट किया है, पूरा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो इतने एम्प्लॉयज हायर करना भी उनके लिए शायद एक हेडेक है. तो क्या आप ऐसा कुछ जुगाड़ बता सकते हो कि अगर इसमें से एक स्टेप अहेड बाहर निकलना है तो क्या कर सकते हैं ये लोग? Okay, so the last training which I took, which you also attended, had 400 participants. वहाँ पे मैंने यही चीज़ पूछी थी कि यार पैसा, is it about पैसा or is it about mindset? So everyone raised their hands and said कि it is about पैसा. फिर वहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया, सबको बाहर भेजा, सब चाय बिस्किट लेके आए. And then I asked them a question. Guys, let me ask, how many of you do have an iPhone 15 Pro Max? And there were 300 people who raised their hands, मतलब 80% of the room, कि मेरे पास 15 Pro Max है. Okay. And I asked उसका कॉस्ट क्या है? तो है कुछ 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में. And then I asked कि यार सिर्फ एक बंदा अगर हायर करोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा? मान लीजिए 20,000 रुपये अहमदाबाद में टू 12, दैट इज 2,40,000. तो आप 1.5 लाख का फोन यूज कर सकते हो, बट आप 2.5 लाख रुपए का आदमी हायर नहीं कर सकते हो. तो आपके पास पैसा नहीं है कि माइंडसेट नहीं है? बताइए. सो इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन टू द ऑडियंस. इट इज़ नॉट अबाउट मनी. पैसा तो आज अंबानी का पास भी नहीं है. पैसा बनाना पड़ता है. पैसा इज एन आर्ट. यू हैव टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट. जितने अच्छे आर्टिस्ट हो उतना ज़्यादा पैसा.
बट आर्टिस्ट तब बन पाओगे जब राइट डिसीजंस ले पाओगे। और राइट डिसीजन ये है कि आप iPhone 15 Pro 2 साल के लिए मत लो, 2 लोग रखो जो आपको 10 iPhone 15 Pro का पैसा कमा के देंगे। Right. So I firmly say it is only an only mindset, because you think that's an expenditure, which I believe firmly it's an investment. Now tell me, do you have problem of money or mindset? Answer yourselves, not to me. That's clear. राइट बहुत अच्छे से आपने डिटेल में समझाया, मतलब it's just got good. Okay, let me also tell you this. जितने भी मेरे फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको देख रहा हूँ यार, वो बाली जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और शान से बोल रहे हैं यार 5 लाख रुपया लो खर्चो करे हो। ग्रेट, रिस्पेक्टेड। बट क्या 1 साल ट्रिप पोस्टपोन करके 5 लाख में 2 आदमी नहीं रख सकता था? एंड देन ही इज लाइक ए हिमल एंड आई एम लाइक बॉस, इट इज माइंडसेट, इट इज नॉट अबाउट मनी। सो माइंडसेट चेंज करो, दुनिया बदल जाएगी, and then you will be able to delegate. Why not? What stops you? So, okay, the biggest takeaway from today's interaction, guys, एक चीज अपनी लाइफ में चेंज करो, that is, हम हमेशा ये ढूंढते हैं how can't I? अपनी डायरी पे लिखो how can I? अगर how can't I सोचोगे तो 10 रीजन मिलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए, पर how can I लिखोगे तो 10 रीजन ऐसे मिलेंगे क्यों करना चाहिए, उसको पकड़ के कर लो। ओके, अभी थोड़ा हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, बट वो भी ज़रूरी था। As long as it can add value to people's life, we are okay to discuss. यस, ओके, अभी बिजनेस रिलेशनशिप की अभी बात की जाए तो आपने बता दिया कि क्यों ज़रूरी है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मुझे आपको एक ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर इसमें टेक्नोलॉजी ऐड की जाए तो लाइक बिजनेस रिलेशनशिप में ऐसा कि किसी को मिलने जाओ, 1-to-1 करो उनके साथ, तो टाइम बहुत जल्दी जाता है। तो आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि लाइक 1 मंथ में हम बहुत सारे लोगों को मिल पाए और उनसे ये रिलेशनशिप की प्रैक्टिस कर पाए, कैसे उनको डिटेल में हमारी प्रोडक्ट समझा पाए और फ्रेंडशिप क्रिएट कर पाए, और सिर्फ बिजनेस बाय प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में इतना स्टक होता है, टाइम नहीं मिल पाता। और अगर रिलेशनशिप में अगर किसी को कॉल भी कर दिया तो अगर नज़दीक का है तो 1 घंटा बाद चलेगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आ सकती है। तो इसमें आपका क्या मतलब राय है? क्या हम बता सकते हो कि कितना लेजर फोकस शार्पन हम बात भी करें, वो भी कंप्लीट फील करें, और रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना नेटवर्क बढ़ा पाए? This goes into communication. There are a lot of ways कि आप communicate कैसे करते हो, बट सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिलेशनशिप मैट्रिक्स सिखाना चाहूँगा। सो रिलेशनशिप मैट्रिक्स ये होता है कि आज टेक्नोलॉजी है विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू। क्या कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ बैठे हुए दुनिया के किसी भी आदमी से बात कर पाओगे अगर फोन्स या जूम कॉल या वीडियो कॉल्स नहीं होते तो? सो आज ये सब की वजह से आप कहीं पे भी किसी को भी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट अ मैट्रिक्स जहाँ पे यू राइट डाउन 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 1 महीना। लेट्स से दैट्स योर y axis. On the axis x, you write down phone call, video call, personal meeting, maybe email or just a WhatsApp chat. Now intersect जहाँ पे ये हो रहा है उस कॉलम्स में आप जिसके साथ ये रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो उसका नाम लिख लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल 15 days मीटिंग, द कॉलम इंटरसेक्ट्स, वहाँ पे मैंने नाम लिख लिया राज। सो नाउ आई फॉलो दिस मैट्रिक्स जहाँ पे मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए 15 दिन में मुझे राज को मिलना है। इफ इट सेज 3 days व्हाट्सएप चैट, सो दैट मीन्स वहाँ पे जितने भी नाम है मैं उनको सिर्फ एक छोटा सा डेवलपमेंट या छोटा सा कोई अच्छा सा कोड भेज दूंगा। सो दैट मीन्स दे कॉन्स्टेंटली रिकॉल मी, because it is my duty that you don't forget me. It is not your duty to remember me, right? So this is a technological relationship matrix which can be very well implemented. Okay. And when we talk about the another question कि यार time का क्या? So जैसे आप अपना sleep cycle define करते हो, which is let's say 8 hours. जैसे आप office time define करते हो, वैसे ही आपको एक डिफाइन कर देना है कि मुझे रिलेशनशिप में हर दिन में या हर वीक में कितने घंटे इन्वेस्ट करना है। Okay. So now once you defined it as a scheduled activity, you would not have a problem of time. And then I would also share something which is more into communication. So let's say if I call Raj and I know कि यार 1 घंटा लगने ही वाला है, but still I want to talk to him, I just pick up my call and say, hey Raj,
आई लव टू टॉक टू यू फॉर आवर्स, बट आज का कॉल मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए किया है, तेरे को सिर्फ हाय हेलो पूछना है। बोल भाई कैसा है? ऑल गुड? अमेजिंग यार, मजा आ गया बात करके। शाम को अगर फ्री है तो लंबी बात करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीक बात करते हैं। एंड दैट्स हाउ वी शेड्यूल दैट। ओके, Logical, doable, practical? यस, Yes. So people don't do it because they always have overthinking. They assume, they presume कि सामने वाला ने केवल लाभ से। अरे तुम क्यों सोच रहे हो? उसको जो सोचना है उसको सोचना दो, right? So do not assume, presume or overthink. Do what you have to do, and things in life will be sorted. ओके। आपने एक बहुत अच्छी ये बात बताई कि आज तक हम एक्सेल शीट में लीड जनरेशन के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स अप्लाई करते थे। मतलब रेवेन्यू जब भी बात में आता है, सेल्स आता है, तो हम उसको एक्सेल शीट में डालते हैं। पर आज तक रिलेशनशिप को एक्सेल शीट में डाल के ऑन गोइंगली इंटीग्रिटी के साथ कभी किसी को कॉल नहीं किया। अगर वो करते तो उसका कुछ रिजल्ट अलग ही होता। 100%. Yes. Because relationship requires efforts. It is like a plant. जितना खातर और पानी डालोगे उतना बड़ा झाड़ होगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता। लोग बोलते हैं कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, જ્યારે જરૂર हो ત્યારે હું હોઉં, बट बाबा तू जरूर हो तभी तू विजिबल भी तो होना चाहिए, मेरे माइंड में रिकॉल भी होना चाहिए। Right. So it has to be, you have to keep connected undoubtedly whatever way it is. राइट। ओके, अभी हम गुजराती है तो एक दूसरी बात भी माइंड में आती है कि लाइक आप समझो कि मैं डेली 2 आवर्स बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग में मैं 2 आवर्स डालता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको फॉर मेजरमेंट पर्पस अगर मुझे उसका आरओआई भी कैलकुलेट करना है, तो क्या मैट्रिक्स में आरओआई का भी मतलब कैलकुलेशन करते हो या फिर वो नहीं करते हो? अगर करना है तो कैसे किया जाए, वो थोड़ा डिटेल में बता सकते हो आप? Okay. So I would say that this is my personal opinion, not a generalized theory. And here I would love to share a story which a lot of entrepreneurs love it. And they always tell me in my sessions to repeat it again and again. Because we all are Gujaratis. हम लोग बहुत सारे लोग गांधीनगर से बहुत पास में एक सिटी कॉल्ड महुड़ी, हम लोग महुड़ी के देरासर में गए होंगे। आप कभी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं या लेट्स से महुड़ी जाते हैं, तो महुड़ी में लाइन में खड़े रह के कुछ बाय करते हैं भगवान को मिलने से पहले, राइट? वो क्या होता है? प्रसाद सुखड़ी। मेरे साथ आप बोलना, जब हम सुखड़ी चढ़ाते हैं भगवान को, मतलब कि थाड़ धरावे हो, दैट इज नोन एज स्वाहा। व्हाट डू वी से? स्वाहा। स्वाहा होने के बाद ही भगवान जी भी बोलते हैं कि तथास्तु, जा तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा, करेक्ट? Right. और शायद वो हमको मिल जाता है। नाउ दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट कमिंग बैक, आप समझिए कि अगर स्वाहा किया ना तभी तथास्तु होगा। सो रिलेशनशिप इज नॉट कंडीशनल, इट हैज टू बी अनकंडीशनल। सबसे पहला, ओके, मतलब कि अगर आज 12 बजे मेरी गाड़ी में पंचर हुआ और मैंने गांधीनगर में आपको फोन किया, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप ये सोचोगे यार नींद बिगाड़ के 2 घंटे बिगाड़ के जाऊं, यार यहाँ से जाके आऊंगा 100 रुपए का पेट्रोल बिगड़ेगा, जाऊं ना, दैट्स कंडीशनल। किसी दिन आपके साथ ये हुआ तो मैं भी यही सोचूंगा, राइट। अगर आपने मेरे को एक ही सेंटेंस बोला, अरे वो छोड़ कहाँ पे, चिल मार, 15 मिनट आया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नेक्स्ट टाइम आई एम देयर फॉर यू। दिस इज हाउ ह्यूमंस ऑपरेट। सो स्वाहा करना जेन्युइनली एंड अनकंडीशनली will make sure कि तथास्तु होगा और होगा ही होगा। So relationships are not only for business. Relationship अगर maintain करोगे, unconditional रहोगे, अच्छा करोगे, तो तथास्तु होना ही है। So the ROI is much higher than you expected. Right. So first condition, be unconditional, be genuine, and do your part of the story. ओके, बहुत अच्छे से समझाया आपने डिटेल में कि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट जस्ट बीइंग इन सर्विस। Exactly. It's not about just asking for the results. Okay. Or you should not even measure the results because कहीं ना कहीं हमारा हार्ट वहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अभी मुझे ये बात करनी है कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मुझे एक बात ये जाननी थी। बिजनेस में लोग B2B सेगमेंट्स एंड B2C सेगमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा समझ लो कि B2C सेगमेंट का कोई बंदा है, ओके, और उसमें उसको बिजनेस थ्रू रिलेशनशिप वाला कोड क्रैक करना है, तो वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि B2C इज वेरी बिग सेगमेंट। मतलब आप हर बंदे से कनेक्टेड नहीं रह सकते। अगर किसी का किराना का स्टोर है या मेडिकल शॉप है,
तो ऐसी जगह पे मतलब क्या वो फास्ट टेक्निक्स अप्लाई कर सकता है कि स्टिल वो अपना रेपो बना के रखे या फिर वो रिलेशन मेंटेन करके रखे? Who is your favorite actor? ऋतिक रोशन. Do you watch the Russian films? Yes. Mostly all films? Yes. Does Ritik have a personal relationship with you? No. You answered yourself. तो रिलेशनशिप को हम बहुत छोटे टर्म में लेते हैं कि यार हम लोग ने हाथ मिलाया, अब किया, कॉफी पिया, उसको रिलेशनशिप होते हैं. नहीं, रिलेशनशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड हेल्पिंग पीपल ऑल्सो. So now let's say this podcast is going to help a lot of people to get techniques like $1 million formulas, like a relationship matrix. Now, do you think that we are doing something good for the society? Definitely yes. Do you think it is building a relationship with them? Definitely yes. आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप हज़ारों करोड़ों लोग तक पहुंच सकते हो और उसको रिलेशनशिप बोलते हैं. सो रिलेशनशिप इज कनेक्शंस थ्रू हार्ट. इट इज नॉट ओनली फिजिकली मीटिंग अप. जैसे कि आज बड़े गुरुज है, मान लीजिए सदगुरु, वो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं और पीपल लव हिम. Isn't that a relationship? Yes. It is. So why and who say that you have to be physically present in that 2,500 square feet? It is not. Right. Can you share one success story behind this? About relationships? The relationship in business. You are talking about this one. Then let me know what is the success story in your life. My whole business is relationship. That's the most important success story of my life. Okay. So I basically happen to be a business coach and a lifestyle mentor and a scale-up and transformational coach. So now what happens is I do not have a product wherein people can touch and feel. So when I maintain a great relationship, it is not only through efforts, but it is also through results. So when I give great results, you become a good friend of mine, maybe a professional colleague or a personal friend. Now, when you recommend someone that Himal can help your business to grow, that has a great impact. Now, that great impact is created because I was able to generate results for you. And so, therefore, there are relationships which we have. So now the whole structure and the business I have built is all through relationship referrals. That's the biggest success story. Right. Okay. एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अभी आफ्टर कोविड सारी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है. Correct. लाइक पहले ऐसा था कि 2014 से लेकर 16 में अमेजोन में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स बाय कर रहे थे, तो वो B2C सेगमेंट था. ठीक है. और आफ्टर कोविड ऐसा हो गया है कि अभी B2B सेगमेंट्स आर ऑल्सो गोइंग फॉर ई-कॉमर्स. राइट. और कहीं ना कहीं मैंने भी ऐसा देखा है कि लाइक मैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट में जाता हूँ, फिर उनका लॉगिन पेज लॉगिन करके अगर मैं उनका मेंबर बनता हूँ, तो उन लोगों ने एक पूरा फनल डिज़ाइन किया हुआ है कस्टमर रिटेंशन के ऊपर कि थ्रू बिजनेस रिलेशनशिप वो कैसे, क्योंकि मैं उनके ओनर को नहीं जानता हूँ, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल. मतलब वो कुछ ना कुछ रेफरल स्कीम बनाते हैं या फिर डिस्काउंट देते हैं कि हमारी वेबसाइट में अगर आप 4 बार लॉग इन करो तो अगर किसी को B2B सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कोई अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अगर उसमें ये बिजनेस रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करना है बट इन टेक्नोलॉजी फॉर्म, इन बेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो आपका उसके लिए क्या सजेशन है? अभी रिसेंट मार्केट में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं? उसका एक छोटा सा एग्जांपल दो आप मुझे. Okay. एक केस स्टडी समझा के अगर पॉसिबल हो तो. Sure. So आज क्या करते हैं? Let's take relationships beyond our thinking. ओके. Okay. If I ask you, do you have a relationship with your kid? Your answer is yes. But it would be as a father. Do you have a relationship with your parents? Yes. But it would be as a son. Yeah. Now, why do we define relationships only and only with human beings? तो आज एक paradigm shift करते हैं और इसको deeply समझते हैं. Can I have a great relationship with my country? We can. Can I have a great relationship with just one website? Yes, I can. So now, when these multinationals work, it is not important कि relationship सिर्फ physically हो. मेरी वेबसाइट के साथ भी मेरे यूजर का एक जबरदस्त रिलेशनशिप है. कैसे? तो मैं एक यूजर हूँ और मेरे को विश्वास है कि अगर प्रोडक्ट गलत आया और मैं एक ईमेल करूंगा तो मेरे को रिफंड मिल जाएगा. सो दैट्स अ रिलेशनशिप. राइट. मेरे को विश्वास है कि मैं अगर वहां पे जाऊंगा और किसी से चैट करना चाहूंगा तो मेरे को कोई मिलेगा. सो दैट्स अ रिलेशनशिप.
So they have again built relationships through websites, through technology, through chats, and therefore a lot of customers have a great relationship with that particular company. Right. So the answer is that if someone wants to extend their relationship through technology, definitely possible. Thousands of companies have done that. Okay. और is there any groups that you can suggest कि कोई भी MSME ओनर है वो वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होके मतलब अपना रिलेशनशिप का नेटवर्क ग्रो कर सकता है? Yes, so I would not name them, but then yes, in Ahmedabad there are a lot of groups wherein there are networking forums which gives amazing results. And as it is said कि यार एक एथलीट के लिए जैसे एक जिम इम्पॉर्टेंट है कि यार वो नॉन निगोशिएबल है, स्किप नहीं कर सकता, वैसे ही एक बिजनेस ओनर के लिए एक नेटवर्किंग फोरम इम्पॉर्टेंट है. ही कैन नॉट स्किप on not being a part of a network. He has to be a part of a network if he wants to grow exponentially. Okay. And one quick question. Any one advice you can give to our viewers? Because all of them are entrepreneurs. So उनके मोटिवेशन के लिए या फिर वो अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं मिस्टेक ना कर दे कोई, कि मतलब ऐसा है कि अब ऐसा समझ लो कि अगर किसी को कुछ चीज अपने अर्ली स्टेज में पता चल जाए, उनको वो एक्सपीरियंस करनी ना पड़े, उसके लिए आपके एक्सपीरियंस से क्या शेयर करना चाहोगे? So I love to share one thing which they should do and one thing which they should not do. So पहले बात करते हैं what they should not do. और एक थियरी भी देता हूँ. So सबसे पहले ओवर थिंकिंग, एजम्पशन और प्रिजम्पशन को स्टॉप कर दो. मतलब तुम्हारे नॉट टू डू लिस्ट में लिखो नो ओवर थिंकिंग, नो एजम्पशन, नो प्रिजम्पशन. To do is something which is only one word, that is implement. Okay. Implement, success will come. And I love to give you a theory. दुनिया में क्या होता है कि हम किसी भी आइडिया से शादी नहीं कर रहे. तो जो भी आइडिया आपके दिमाग में आया हो, मत सोचो अच्छा है बुरा है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, फेलियर है सक्सेस है, मत सोचो, उसको कर डालो. दैट इज डू. वंस यू डू इट, दैट्स अ पायलट प्रोजेक्ट. अगर आपने किया, अगर अच्छा लगा तो उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर लो, अगर नहीं लगा तो यू कैन ऑलवेज बी बैक टू स्क्वायर वन. उसमें आपका नुकसान ही क्या है, राइट? पर हम क्या सोचते हैं कि यार अगर ये अच्छा नहीं लगा तो, अब तो के बाद देयर आर 1000 क्वेश्चंस कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, विच इज नेवर गोइंग टू हैपन क्योंकि आपने वो किया ही नहीं है. सो वर्क ऑन लॉजिक, वर्क ऑन साइंस, वर्क ऑन डेटा पॉइंट्स, डू दैट, हैव द डेटा. अब सोचो कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड दैट्स सॉर्ट्स द लाइफ. राइट. मतलब आपने जो भी बताया मुझे कोट याद आ गया, प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट, परफेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट. यस, सो आई एम अगेंस्ट परफेक्शन. परफेक्शन हो ही नहीं सकता, राइट. क्योंकि अगर परफेक्शन हो गया उसका मतलब ये हुआ कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है. दुनिया में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है ही है. Right. और यार परफेक्शन को क्या ही कर लोगे. मान लीजिए कि अगर आपने वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे, बहुत परफेक्ट बना तो 5000 लाइक आए, थोड़ा कम अच्छा बना तो 4000 लाइक आए, तो फर्क ही क्या पड़ गया. राइट. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू परफेक्शन. Okay. Thank you so much, Hemant, for coming in this show. You have guided us in very well. And जो आपने जितने भी बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए, वो बहुत ही अब अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए. Thank you so much for coming. Pleasure is all mine, and I wish you all the best for the new financial year. And just do not limit your challenges, challenge your limits, and the world will be yours.